لیکن اگر آپ نے ایک گول کو مقصد حیات بنا لیا تو پھر آپ پکے ڈپریس ہوں گے. جیسے کسی سے شادی کرنا ایک گول ہے، لیکن اگر وہ آپ کی زندگی کا واحد مقصد ہے اور اگر شادی نہیں ہوئی تو پھر جو ہے وہ مقصد، وہ آپ کا جینے کا مقصد ختم ہو گیا. جب مقصد حیات ختم تو بس پھر جینے کا کیا فائدہ، پھر ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آج انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھتے ہیں. آج دو چیزوں کو میں ڈسکس کروں گا. ایک تھیوری ہے پازیٹیو ایموشنز کی اور وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دوسرا ایک چیز ہے ری فریمنگ. ری فریمنگ بہت ضروری ہوتی ہے. ری فریمنگ ہوتا ہے کہ کسی واقعے کو لے کر، کسی حادثے کو لے کر اس کو ری انٹرپریٹ کرنا، ری فریم کرنا، اپنے جملوں کو ری فریم کرنا. اس سے بہت فرق پڑتا ہے انسان کی ذہنیت پہ اور انسان کے کسی حادثے سے باہر آنے پہ. فار ایگزامپل میں آپ کو کچھ ری فریمنگز بتاتا ہوں. کووڈ جب آیا تو بہت سے لوگوں کی جابز گئیں اور ان کو فائر کیا گیا، ڈاؤن سائزنگ کی گئی. اب دیکھیں، آپ کا لائف پارٹنر جب آپ کی جاب گئی تو وہ یہ کہے آگے سے کہ ہم بد قسمت ہیں اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور جو ہے نا وہ ہمیں کسی گناہ کی سزا ملی ہے اور بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب ہمارا دین جو ہے نا وہ ریئلسٹک ری فریم کرنا سکھاتا ہے. ری فریمنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور ایوری تھنگ از آل رائٹ. یہ پھر ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے، یہ پھر ریالٹی کا انکار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے آپ ریالٹی سے دور چلے جاتے ہیں. ری فریمنگ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یس اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن، یہ ایک مشکل سچویشن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن وی ہیو ایچ ادر اسپاؤزز، وی ہیو ایچ ادر، انشاءاللہ ود Allah's help we will get out of this. یہ ری فریمنگ ہے. ٹھیک ہے، تو ری فریمنگ بہت ضروری ہوتی ہے واقعات کو ری انٹرپریٹ کرنے کے لیے، واقعات کو فائٹ کرنے کے لیے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. ری فریمنگ کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آدم علیہ السلام نے اس واقعے کو ری فریم کیا. آدم علیہ السلام سے جب ڈس اوبیڈینس ہوئی، اس کو ہم ڈس اوبیڈینس کہتے ہیں، کہ ڈس اوبیڈینس اللہ خود کہتے ہیں کہ اس نے ڈس اوبے کیا اپنے لارڈ کو. ٹھیک ہے، ڈس اوبیڈینس ہے. شیطان نے بھی ڈس اوبے کیا، آدم علیہ السلام نے بھی ڈس اوبے کیا. شیطان نے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا، آدم علیہ السلام نے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا، یہ دو الگ رویے ہیں. آدم علیہ السلام فوراً سیلف اویئر ہو گئے، اپنی غلطی کو مان لیا. اس کو سیلف اویئرنس کہتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. لیکن اس طرح اعتراف نہیں کیا کہ اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر دیں. سمجھ رہے؟ کچھ لوگ سے جب غلطی ہوتی ہے وہ اتنا سیلف سیبوٹاج کرتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کو بالکل اناہیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. ٹھیک ہے، ہی بیکیم سیلف اویئر اور ہی ڈز ناٹ ڈینائی دا مسٹیک، ہی ڈز ناٹ جسٹیفائی دا مسٹیک. ہی فیلز شیم بٹ ناٹ پیرالائزنگ شیم. پیرالائزنگ شیم کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو پیرالائز کر دے، جو آپ کو فالج کا ایک دم اٹیک ہو جائے اور آپ پیرالائز ہو جائیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام نے کیسے اس چیز کو ری فریم کیا؟ فرام فیلنگ اشیمڈ ٹو فیلنگ رسپانسبل. سمجھ رہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ خوش رہنے کا ایک طریقہ بھی ہے. ایرسٹوٹل کی خوشی کی ایک تھیوری ہے. ایرسٹوٹل جو ایک گزرا تھا فلاسفر، اس سے کہا تھا خوش رہنے کے کچھ طریقے اس نے بتایا. اس میں سے ایک طریقہ یہ بتایا تھا کہ ٹیک رسپانسبلٹی آف یور ایکشنز، اس سے آپ خوش رہیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ بلیم گیم کرنے لگیں گے، اپنی غلطی نہیں مانیں گے، رسپانسبل نہیں ہوں گے، تو آپ خوش نہیں رہ سکتے. تو آدم علیہ السلام نے شیم کو رسپانسبلٹی میں کنورٹ کیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا آئی ایم روئنڈ، آئی ایم انوردی. انہوں نے کیا کہا؟ وی رانگڈ آور سیلفس. اللہ، ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں، اگر آپ معاف نہیں کریں گے پھر ہم روئن ہو جائیں گے. یہ نہیں کہا وی رانگڈ آور سیلف اینڈ وی آر روئنڈ. یہ جملہ نہیں ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر اللہ تو نے رحم نہ کیا، تو نے معاف نہ کیا، پھر ہاں ہم روئنڈ ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہے اصل میں بدقسمتی. دیکھیں اس میں ایک اتنا زبردست طریقہ ہے خوش رہنے کا، اور یہ میں بات اکثر نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں، جو مجھے بھی سمجھ لگ گئی تھی الحمدللہ جب میں دین کی طرف آیا، کہ پرپز، گول اور رول یہ تین مختلف چیزیں. پرپز، یہ میں نے لاسٹ کلاس میں بات کی تھی. مقصد جو ہے نا، دیکھیں ابھی میری ٹاک بھی تھی ایک انسٹیٹیوٹ میں نے وہاں بھی اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھایا کہ ہماری ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گولز کو مقصد سمجھ لیتے ہیں.
गोल्स टेम्पररी होते हैं, चेंज होते हैं, कोई अचीव हो जाता है, कोई नहीं अचीव हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने एक गोल को मकसद हयात बना लिया तो फिर आप पक्के डिप्रेस होंगे। जैसे किसी से शादी करना एक गोल है, लेकिन अगर वो आपकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद है और अगर शादी नहीं हुई तो फिर जो है वो मकसद, वो आपका जीने का मकसद ख़त्म हो गया। अगर आपने जो है ना वो एक चीज़ अचीव करनी है, वो आपका गोल नहीं है, मकसद बन गया। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, डॉक्टर बनना है, मकसद हयात ही डॉक्टर बनना है, तो फिर जब डॉक्टर नहीं बनेंगे तो फिर मकसद हयात ख़त्म। जब मकसद हयात ख़त्म तो बस फिर जीने का क्या फ़ायदा, फिर डिप्रेशन ही डिप्रेशन। इसलिए देखें, हमारा मकसद है अल्लाह ताला को प्लीज़ करना, हमारा मकसद है अल्लाह की इबादत। हमारा मकसद क्या है? अल्लाह ताला जब तक राज़ी है तब तक सब कुछ अचीव हो रहा है, और ये वो मकसद है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये मकसद आपसे कोई नहीं छीन सकता। मकसद होता ही वो है जो ना आपसे कोई छीन सके, जो ना किसी सरकमस्टेंस पे डिपेंड हो। आप जेल भी चले जाएं, खुदा ना खास्ता, आप अल्लाह की इबादत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आपका मकसद तो अचीव हो रहा है। आप फुटपाथ पे भी आ जाए, अल्लाह ना करे, आपसे कोई ये मकसद छीन सकता है नमाज पढ़ना? हर वक्त ये मकसद अलाइव है, हर वक्त ये मकसद आपके पास है। इसीलिए अंबिया जेल भी गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको कुएं में भी फेंका गया, उनको जंगलों में भी फेंका गया मूसा अलैहिस्सलाम, वो मछली के पेट में भी चले गए। मछली का पेट तो होपलेस सिचुएशन है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में जो वाक़या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिबे अबी तालिब डेथ्स भी देखी, हज़रत खदीजा की डेथ देखी, अबू तालिब की डेथ देखी, लेकिन कम बैक किया कि नहीं किया? क्योंकि देवर क्लियर, मेरा मकसद क्या है, मकसद हयात क्या है। ये टेम्पररी चीज़ें, ये गोल्स हैं, ये रोल्स हैं। अभी आप हस्बैंड हैं, कल को आप नहीं हस्बैंड, वो रोल ख़त्म। अभी आप फादर हैं, कल को अल्लाह ना करे बच्चे नहीं हैं आपके पास, फादर आप नहीं है, रोल ख़त्म, ठीक है। अभी आप हेड मास्टर हैं, कल को रिटायर हो जाएंगे, रोल ख़त्म। अभी आप सीनियर मैनेजर हैं, अभी आप कैप्टन हैं अपनी टीम के, सारी उम्र तो कैप्टन नहीं रहना, रोल ख़त्म होगा। लेकिन अगर वो रोल आपका मकसद था कैप्टन ही रहना है, तो फिर आप सारी उम्र डिप्रेशन से ही नहीं बाहर निकलेंगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है। रोल्स भी चेंज होते हैं, गोल्स भी चेंज होते हैं, मकसद कभी चेंज नहीं होता। तो देखिए, आदम अलैहिस्सलाम जो है ना, उनको अपना मकसद बड़ा क्लियर था। उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर आपने हम पे रहम ना किया तो फिर हम तबाह हैं। उन्होंने ये नहीं कहा जन्नत से निकलना तबाही है। प्लीज़ पॉइंट टू नोट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जन्नत से निकलना तबाही नहीं है। अल्लाह अगर आपने रहम ना किया तो तबाही है। लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर आप राज़ी नहीं है तो फिर ये सबसे बड़ा खसारा है। अब सोचे ये चीज़ आपका क्या माइंड शिफ्ट करती है और आपके वर्ल्डली प्रॉब्लम्स को कितना ट्रिवियल बनाती है, कितना स्मॉल बनाती है, कितना छोटा बनाती है कि यार ये ट्रिवियल प्रॉब्लम, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है, कोई चीज़ मिल जाना, कोई चीज़ ना मिलना, कोई गोल अचीव, ये तो ट्रिवियल मैटर्स हैं। असल मैटर, असल फोकस है कि अल्लाह मुझसे राज़ी रहे। असल फोकस है कि अल्लाह ताला की मैं इबादत करता रहूँ, उसकी बंदगी करता रहूँ, उसकी ओबीडियंस करता रहूँ, ठीक है। तो ये देखें, आदम ने इसको इस तरह से लिया, इसी को रिफ्रेमिंग कहते हैं। उसके बाद एक और रिफ्रेमिंग हमें नज़र आती है, फ्रॉम हाइडिंग टू टर्निंग टू अल्लाह। वो एकदम छुप नहीं गए, भाग नहीं गए, हाइड नहीं करना शुरू कर दिया। ही फेस्ड हिज प्रॉब्लम, और अल्लाह ताला को उन्होंने फेस किया और अल्लाह ताला से उन्होंने माफ़ी मांगी, ठीक है। विड्रॉ नहीं हुए, अल्लाह को अवॉइड नहीं किया, दुआ को डिले नहीं किया, टोटली ऑपोजिट किया। इमीडिएटली वो अल्लाह की तरफ जो है ना रुजू किया उन्होंने। और अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं जो इमीडिएटली अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखें, हमें मूसा अलैहिस्सलाम की रिफ्रेमिंग मिलती है। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा फियर में थे, पावरलेस थे, टॉक्सिक अथॉरिटी को फेस कर रहे थे, यानी फ़िरौन की जो एक वो जालिमाना रवैया था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सारे इमोशंस को डायरेक्ट किया दुआ में, और उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, ये मैं आपको आयत सुना रहा हूँ कि अल्लाह, आई फियर दे विल डिनाई मी, मुझे डर है कि अल्लाह वो मेरे ख़िलाफ़ कुछ कर देगा फ़िरौन, और मुझे डर है कि वो मुझे डिनाई कर देगा। एंड माई चेस्ट विल टाइटन, और मुझे डर है कि मेरे जो सदर है, चेस्ट है, वो इस तरह से टाइटन हो जाएगा, और मुझे डर है कि मेरी जो ज़बान है वो फ्लुएंट नहीं होगी।
फिर उन्होंने क्या दुआ की, रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उन्होंने इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को डायरेक्ट किया, इस्तेमाल किया, दुआ में कन्वर्ट किया और अल्लाह ताला से कह दिया। तो देखिए ही फेल्ट सो गुड जब आपने अल्लाह ताला को कह दिया। अब आप अपने डर अल्लाह ताला को बताएं, कभी अल्लाह ताला से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, ठीक है ना, बजाय कि सोशल मीडिया पे स्टेटस डालने के। उसके कोई इतने फ़ायदे नहीं होंगे, वो बस एक वेंट आउट हो जाएगा, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव फ़ायदा नहीं निकलेगा। आप अल्लाह ताला के सामने रख दें, अल्लाह ये मेरे फियर्स हैं, जैसे मूसा इस्लाम क्लियर वो फियर्स रख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए मूसा इस्लाम ने ये नहीं कहा आई कांट डू दिस, आई एम वीक, आई फेल्ड बिफोर, मैंने तो पहले बंदे को एक मारा है, मुझसे दोबारा ये गलती ना हो जाए, आई हैव स्पीच इश्यूज, वो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं। उन्होंने एक बैलेंस कायम किया कि अल्लाह ये मेरे डर हैं और अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं इन चीज़ों को ओवरकम कर लूँगा। मेरे एक कॉन्फिडेंस का एलिमेंट भी था कि अल्लाह अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आपकी मदद से मैं इन चीज़ों को ओवरकम कर लूँगा। तो ये बहुत बड़ी रिफ्रेमिंग हमें मिलती, पॉजिटिव रिफ्रेमिंग, ठीक है। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप देखें उन्होंने क्या नहीं देखा, उन्होंने बिट्रेयल देखा, धोखा देखा, बहुत बड़ा धोखा देखा फैमिली का, उन्होंने नाइंसाफ़ी देखी, इनजस्टिस देखा, उन्होंने जो है ना वो इतना ज़्यादा जुदाई देखी अपने वालिद से। आप मुझे बताएं, आप इन प्रॉब्लम से गुजरे, आप एक बिटर पर्सनैलिटी बन जाएंगे, एक एंग्री इंडिविजुअल बन जाएंगे, एक अनप्रोडक्टिव इंडिविजुअल बन जाएंगे, आपका गुस्सा ही नहीं जाएगा, आपका ट्रॉमा ही नहीं जाएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन आप देखें उन्होंने इन सारे वाक़यात को, और वो इंसान थे, ठीक है ना, ये कोई कह सकता है नहीं वो तो नबी थे। देखिए अगर वो नबी थे, नबी तो थे, लेकिन अगर उनकी मिसाल हम पे एप्लीकेबल नहीं है तो फिर अल्लाह उनकी स्टोरी बयान ही ना करता। बयान करने का क्या मकसद है? बयान करने का मकसद ये है कि तुम भी ये चीज़ें लगाओ, यही मकसद है ना, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं कहा माई लाइफ इज़ रूइंड, अबैंडन्ड बाय माई फैमिली, इम्प्रिजन्ड फॉर नो क्राइम। कह सकते थे ना भाई मेरा तो कसूर ही नहीं है, मुझे जेल में क्यों बंद कर दिया गया, मैंने तो किया ही कुछ नहीं। और ये कह सकते थे ईयर्स वेस्टेड, मेरे तो इतने साल वेस्ट हो गए हैं, ठीक है ना, मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी जो असल में काम करने वाली ज़िंदगी थी वो तो प्रिजन में गुजर गई, कह सकते थे। लेकिन उन्होंने इसको कैसे जो है रिफ्रेम किया, लिटरली उन्होंने कहा, लिटरली ये कहा तो नहीं लेकिन ये जो नज़र आता है उनके रवैये से, कि इवन व्हेन आई डोंट सी इट, अल्लाह इज़ गाइडिंग एवरी स्टेप, अल्लाह इज़ कंट्रोलिंग माई लाइफ, पेनफुल मोमेंट्स आर सेटिंग मी अप फॉर पर्पस एंड एलिवेशन। देखिए ये उन्हें समझ आ गई कि ये हालात मुझे किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो आगे बढ़ते रहे। ये होती है रिफ्रेमिंग। इस तरह मरियम अलैहिस्सलाम आप देखें, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आई कैन नॉट डू दिस, ऑल्दो एक टाइम पे कहा कि काश मैं एग्जिस्ट ना करती। वो इसलिए नहीं कहा कि आई कांट डू दिस, वो इसलिए कहा कि वो इतनी हया वाली थी, वो इतनी हया वाली थी कि वो फेस नहीं करना चाह रही थी लोगों को, कि लोग जब ऐसी बात करेंगे, तो उस वजह से उन्होंने कहा था कि काश मैं एग्जिस्ट ना करती। इस वजह से नहीं था कि मिशन मुझसे नहीं होगा। लेकिन आप देखें अल्लाह ताला ने उनको किस तरह पॉजिटिव रिफ्रेम करवाया कि मरियम अल्लाह तो आपको मिसाल बनाएंगे आलमीन की औरतों के लिए, दुनिया की औरतों के लिए, आपका तज़किरा बुलंद करेंगे, ठीक है ना। तो इससे भी यही पता लगता है डू व्हाट यू कैन, और अल्लाह ताला जो है ही विल सेंड हेल्प। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ एक तरीका, आज की जो क्लास का मकसद है कि पॉजिटिव रिफ्रेमिंग, ये बहुत हेल्प करती है इंसान को। रियलिस्टिक पॉजिटिव रिफ्रेमिंग करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक गुनाह से स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार स्लिप हो रहे हैं, तो आप अपने आप को ना इतना एनाहिलेट करें, ना इतना सेल्फ सैबोटेज करें कि आप कहें कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो हूँ ही नालायक और बस इस चीज़ से कभी भी नहीं निकला जा सकता। ना ही आप इतना उस पर बहुत ज़्यादा पुरुमीद हो जाएं कि नो मैटर व्हाट आई डू अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा, नो मैटर व्हाट आई डू अल्लाह ताला मेरी पकड़ नहीं करेगा। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। आपको ये कहना चाहिए कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, गलत कर रही हूँ और मैं फेल हुआ हूँ बार बार, लेकिन विद अल्लाह's हेल्प, अल्लाह ताला तो यूनुस सलाम को निकाल सकता है मछली के पेट से, अंधेरों से, तो मुझे भी इस सिचुएशन से निकाल सकता है अल्लाह ताला। तो दिस थिंग हेल्प्स अ लॉट। ये आपके पॉजिटिव इमोशन बिल्ड करेगी, आप में मोटिवेशन आएगी, आप में इंस्पिरेशन आएगी, आप में होप आएगा, आप में ऑप्टिमिज्म आएगा, ठीक है, और उससे आपके रवैये बदलेंगे। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है द ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन। इसको आप ज़रा
गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये थ्योरी बारबरा फ्रेडरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने दी है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब मैं थ्योरीज पढ़ रहा होता हूँ तो मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यार काश ये बेचारे गोरे और नॉन मुस्लिम्स हमारी बात सुनते तो हम इन्हें बताते कि यार यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन ईयर्स ऑफ रिसर्च, चुप करके इस्लाम अडॉप्ट कर लो तो आपका बड़ा वक्त बच जाएगा। लेकिन एनीवे चलें, अब वो रिसर्च कर रहे हैं, थ्योरीज के नाम बना रहे हैं, हमें बता रहे हैं। तो शायद ये इसलिए भी अल्लाह की हिकमत है कि मुसलमानों का ईमान एक दौर में इतना वीक हो जाएगा कि कुरान और हदीस उन्हें समझ कोई नहीं लगनी, कुरान और हदीस को उन्होंने डिग्रेड करना, तो शायद साइकोलॉजी की बात से वो मोटिवेट हो जाए, शायद कुछ साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज बताई जाए तो उनको जो है ना कॉन्फिडेंस आए। एनीवे, द ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन, ये है उनकी बारबरा फ्रेडरिक्सन जिसका नाम है साइकोलॉजिस्ट का, और बड़ी अच्छी थ्योरी है। वो ये कहती हैं कि हर पॉजिटिव इमोशन आपकी थिंकिंग को ब्रॉडन करता है, और जब थिंकिंग ब्रॉडन होती है तो आप उस पॉजिटिव इमोशन पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये एक साइकिल है, पॉजिटिव इमोशन बिल्ड हुआ, पॉजिटिव इमोशन से थिंकिंग ब्रॉड होती है, थिंकिंग जब ब्रॉड होती है तो आप उस पॉजिटिव इमोशन को ज़्यादा बिल्ड करते हैं, जब आप उसको ज़्यादा बिल्ड करते हैं तो ग्रेटर वेलबींग होती है और एक रवैया जन्म लेता है। और उन्होंने बाकायदा वो रवैये बताए कि हर पॉजिटिव इमोशन से ख़ास रवैया जुड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉय से जो रवैया जुड़ा हुआ है वो प्लेफुलनेस है। जो बंदा जॉयफुल होता है और जॉयफुल रहना पसंद करता है वो प्लेफुल हो जाता है इन द सेंस कि उसकी गुफ्तगू मीठी हो जाती है, उसकी गुफ्तगू पॉजिटिव हो जाती है और वो शगुफ्ता मिजाज हो जाता है। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हर वक्त शगुफ्ता मिजाज थे, ठीक है, आते जाते लोगों से प्यारी बात कर रहे हैं, प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, मज़ाहिया कमेंट्स दे रहे हैं और लोगों को हंसा रहे हैं जाते हुए, ठीक है ना। ये है एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी। इसी तरह वो कहती है ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी, वो आप में ख़ास रवैया जन्म देता है जिसको कहते हैं क्रिएटिव एंड गिविंग। आप ग्रैटिट्यूड से क्रिएटिव होते हैं और क्रिएटिव होते हैं और आप में गिविंग का एटीट्यूड आता है, ज़्यादा गिविंग का एटीट्यूड आता है, ठीक है। इसी तरह सिरेनिटी से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिरेनिटी क्या है? सुकून फील करना। सिरेनिटी से आपके अंदर सेवरिंग का रवैया आता है। सेवर करना किसे कहते हैं? जो सेवर राइस है, सेवर नाम है ना इसका, ये जो बहुत बड़ी मशहूर, सेवर का क्या मतलब होता है जी? एक चीज को फील करके उसको एंजॉय करना, खाना खाते हुए सेवरिंग द मोमेंट, बहुत मशहूर जुमला आपने सुना है ना, सेवरिंग द मोमेंट। तो आप सिरेनिटी में जब होते हैं, कंटेंटमेंट में, पीस में जब होते हैं, तो आपको छोटे छोटे मोमेंट्स में सेवरिंग करना आ जाती है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी से पीस मेक कर चुके होते हैं, आप लोगों से पीस मेक कर चुके होते हैं और आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो चुके होते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिविटी दिखाता है, फिर अल्लाह ताला आपको छोटी छोटी नेमतें जो हैं वो आपको नज़र आने लग जाती हैं और आप उनको सेवरिंग द मोमेंट जिसे कहते हैं, आप उनको सेवर करने लग जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो इंटरेस्ट है, ये भी एक पॉजिटिव इमोशन है, जिसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है, वो फिर एक्सप्लोरेशन की तरफ जाता है, उसका नेक्स्ट रवैया एक्सप्लोरेशन है। तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस तरह से अपनी थ्योरी में बताया कि जब हम एक पॉजिटिव इमोशन को बिल्ड करते हैं तो हमारी थिंकिंग ब्रॉडन होती है। और इसके बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं और वो मैं एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने, जैसे आप सब बैठे हुए सामने, उन्होंने ऑडियंस को एक बहुत ही सैड क्लिप दिखाया और अभी नहीं बताया कि वो करने क्या वाली हैं। जैसे बमबारी हो रही है किसी इलाके में या गुर्बत है किसी इलाके में और उन्होंने दिखाया कि लोग बड़े परेशान हैं वगैरह वगैरह, जिससे ऑडियंस बड़ी सैड हो गई और बड़ा डिमोटिवेट सी हो गई। और फिर उन्होंने ऑडियंस से पूछा व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ। तो ऑडियंस के पास 2-3 से ज़्यादा आंसर नहीं थे। उन्होंने 1 मिनट दिया कि 1 मिनट में लिखें ऑल द थिंग्स यू वांट टू डू इन लाइफ। तो उनके 2 आंसर, 1 आंसर, शायद किसी के पास 1 भी आंसर नहीं था, ठीक है। कुछ लोगों ने शायद ये भी लिख दिया आई वॉन्ट टू डाई, क्योंकि वो क्लिप ऐसा देख लिया, आई डोंट वॉन्ट टू लिव। फिर उन्होंने बहुत ही अम्यूजमेंट वाला जॉयफुल क्लिप दिखाया ऑडियंस को, दे फेल्ट रियली गुड। और फिर उन्होंने उनसे पूछा व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ, और फिर लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे आंसर लिखे, 4 से 5, ठीक है। यानी इससे उन्होंने साबित किया कि पॉजिटिव इमोशन आपकी थिंकिंग को क्या करता है,
ब्रॉडन करता है, आपको क्रिएटिव बनाता है, पॉजिटिव इमोशन। इसलिए पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, अपने घरों में पॉजिटिव माहौल रखना ज़रूरी है। बिला वजह की सख्तियाँ, बिला वजह के कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, बिला वजह की चीज़ें जो अवॉइड की जा सकती हैं, लेकिन हमारी ईगो उनको अवॉइड नहीं करने दे रही, और शैतान भी आ रहा है कि नहीं नहीं यही मसला, इसी पे तवज्जो दो, इसी पे तवज्जो दो। तो उससे क्या होता है, जहन बंद हो जाता है, जहन बंद हो जाता है, क्रिएटिविटी बंद हो जाती है, क्रिएटिविटी बंद हो जाती है, आप कुछ सोच नहीं सकते। ठीक है, यही है फ्लरिश करने का तरीका। तो ये एक्सपेरिमेंट से यही साबित होता है कि आप जब खुश होते हैं आपका माइंड काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जब आपका माइंड काम करना शुरू करता है आप और चीज़ें बिल्ड करते हैं और उससे ग्रेटर वेलबींग आती है। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक थ्योरी है, बिल्ड, इसका नाम है द ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन, के पॉजिटिव इमोशन विल बिल्ड यू। अब देखें, इसका मुसलमान के पास नेचुरल तरीका है कि नमाज पढ़ के यू शुड फील गुड। ठीक है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए नमाज पढ़ के, एक खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हुई है। ठीक है, नमाज पढ़ के। अब यूजिंग दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट आपका जहन खुलना चाहिए। अगर नहीं खुल रहा तो आप सही से नमाज नहीं पढ़ रहे, या नहीं खुल रहा तो आप माइंडफुल ही नहीं है नमाज के बारे में, आप नेकी के बारे में माइंडफुल ही नहीं है कि मैंने अच्छा काम कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, आई शुड फील गुड। तो जब आप उसको फील करेंगे आपका जहन खुलेगा, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे, सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हमारा दीन इसीलिए देखिए पॉजिटिव इमोशंस पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। और मैं आपको एक और भी रिसर्च आपके सामने रखता हूँ, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। ये बहुत पुरानी मेडिटेशन है बुद्धिज़्म की, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, और यूट्यूब पे आपको इसके जो है ना वो एक्सरसाइजेस भी मिल जाएंगी, जिसमें जो गुरुज हैं वो ये बाकायदा करवा भी रहे होंगे। वो एक सेरेनिटी सा सीन चल रहा होगा क्लिप में, और ऐसे कुछ साउंड्स आ रहे होंगे नेचर के, और फिर वो आपको कहेंगे क्लोज योर आइज़, फिर आपको कहेंगे कि चौंकड़ी मार कर बैठ जाओ जैसे योगा में बैठते हैं, या उस तरह बैठ जाओ जैसे अत्तहिया में नहीं हम बैठते, उस तरह बैठ जाओ, अपने हाथों को अपने गोडों पे रख दो, और फ्री योर माइंड, आपका माइंड फ्री करवाएंगे। और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें रिपीट करनी कहेंगे कि रिपीट आफ्टर मी, बाय फ्रीइंग योर माइंड रिपीट आफ्टर मी। पहली चीज़ वो ये रिपीट करवाएंगे कि ये कहो, मे आई बी फिल्ड विद हैप्पीनेस। दूसरा जुमला, मे आई बी सेफ। ठीक है, तीसरा जुमला, मे आई बी हैप्पी, या मे आई बी हेल्दी। ये कहो। उसके बाद वो आपको आगे ले जाएंगे कि किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिससे आपको प्यार है, जो आपके क्लोज है, मे बी योर पेरेंट्स, मे बी सिबलिंग्स और वट एवर, और उसके बारे में कहो मे दे बी हैप्पी, या मे यू बी हैप्पी, मे यू बी सेफ, मे यू बी हेल्दी। उसके बाद वो कहेंगे कि इसको ग्लोबल लेवल पे लेकर जाओ, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी सेफ। ठीक है ना, और मे ऑल बी एट ईज। और ये रिसर्च बेस्ड बात है। अब मैं आपको थोड़ा सा साइंस समझाता हूँ। हार्ट टू ब्रेन जो नर्व जाती है, किसी को पता है उसका क्या नाम है? सबसे बड़ी नर्व है आपके जिस्म की, वेगस नर्व। ठीक है ना, वेगस नर्व। और उससे रिलेटेड एक टोन होती है वेगल टोन। वेगल टोन ये है कि मिसाल के तौर पे जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, फियरफुल सिचुएशन में होते हैं, तो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन उस नर्व के थ्रू हार्ट को मैसेज भेजता है। और वो भी अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि हार्ट बीट बढ़ेगी तो आपका कोर्टिसोल लेवल डाउन आएगा। ठीक है, और उसके बाद हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। तो ये बाकायदा मेजर्ड चीज़ है, एक वेगल टोन कहते हैं इसे। ठीक है, वेगल टोन ये मेजर्ड चीज़ है, बाकायदा इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, MRI के थ्रू, साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड बात है कि जो लोग लविंग काइंडनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से प्रैक्टिस करा रहे हैं आंखें बंद करके ये प्रैक्टिस करना, उनकी वेगल टोन बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। वेगल टोन अच्छी मेंटेन रहने से क्या मुराद है? उससे ये मुराद है कि जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं तो नॉर्मल भी जल्दी हो जाते हैं। वेगल टोन अच्छी होने से ये मुराद है। ठीक है, जैसे आपकी ये जो वॉच है, स्मार्ट वॉच, ये आपका एक कार्डियोवास्कुलर रेट मेजर करती है। ठीक है, अब जब आप रनिंग करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर रेट एकदम ऊपर जाता है, और उसके बाद वो फिर नॉर्मल हो जाता है। वो नॉर्मल होने में ख़ास टाइम लगता है। कुछ लोग की बॉडी इतनी एफिशिएंट होती है कि वो 30 सेकंड में वेगल टोन नॉर्मल पे आ जाती है।
कार्डियोवास्कुलर रेट। कुछ लोग हेल्दी इतने नहीं होते हैं, उनकी बॉडी को नॉर्मल पे आते हुए 2 मिनट लग सकते हैं और उस दौरान अस्थमा का अटैक भी हो सकता है, ठीक है, रनिंग करते हुए। अब साइकोलॉजी ये बताती है, रिसर्च ये बताती है कि जो लोग ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उनकी वेगल टोन इंप्रूव होती है, और वेगल टोन इंप्रूव होने का मतलब है उनकी सेहत इंप्रूव होती है। उनके सेहत इंप्रूव होने का मतलब है कि वो जल्दी स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और ये रिसर्च बेस्ड बात है, मेजर्ड बात है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सोचें, ये जो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन है, और ये इसलिए है क्योंकि जब इंसान किसी दूसरे के बारे में कुछ अच्छी बात करता है, दुआ करता है, अपने से थोड़ा सा बाहर निकलता है, तो ये नेचुरल है कि वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करता है और वो अच्छा फील करता है, ठीक है। और थोड़ा सा उसे मौका मिलता है अपने प्रॉब्लम से भी बाहर देखने में। अब देखिए, ये लविंग काइंडनेस मेडिटेशन जो है, ये किससे कह रहे हैं मे आई बी हैप्पी, मे आई बी सेफ, पता नहीं दीवारों से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, ठीक है ना, या यूनिवर्स से कह रहे हैं, यूनिवर्स की एनर्जी है जिससे भी कह रहे हैं। अब जो मुसलमान दुआ करता है वो तो नेक्स्ट लेवल है, वो तो अल्लाह ताला से कह रहा है, ठीक है। और वो अत्तहियात से लेके एंड तक सारी लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, अगर आप कभी सोचें, और नेक्स्ट लेवल लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। और बैठे भी वैसे हुए आप, जैसे योगा में बिठाते हैं, ठीक है ना, बैठे भी वैसे हुए हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ठीक है ना, तमाम प्रेजेस अल्लाह के लिए हैं, और तमाम तैयब चीज़ें, तमाम सलावात अल्लाह ताला के लिए, तमाम नमाज़ें। और फिर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करते हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, उन पर सलाम भेजते हैं। फिर हम सालिहीन पर सलाम भेजते हैं, अल्लाह ताला के इबादत गुजार बंदों पे सलाम भेजते हैं। फिर हम तशहुद कहते हैं, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद, उनकी आल पे दुरूद, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे दुरूद, उनकी आल पे दुरूद। उसके बाद हम यही तो दुआएं करते हैं, सबसे पहले अपने लिए, ठीक है ना, उसके बाद लोगों के लिए, उसके बाद बीमारों के लिए। तो कितनी ज़्यादा दुआएं लाई जा सकती हैं दुरूद इब्राहिमी के बाद अपनी उसमें। तो देखिए, आज तो रिसर्च बता रही है कि जो लोग ये ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनकी वेगल टोन भी बेहतर होती है, वो स्ट्रेस को भी अच्छा फाइट कर लेते हैं। और हमारे पास इस्लामिक रिसर्चेज भी हैं कि जो लोग ज़िक्र करते हैं, नमाज अच्छी पढ़ते हैं, उनकी वेगल टोन बहुत इम्प्रूव्ड होती है, ठीक है ना, उनके ब्रेन के फंक्शंस बहुत हेल्दी होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस उनमें ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप सिर्फ आज का ये टेक अवे ले लेना कि अगर आप नमाज अपनी अच्छी कर लें तो बहुत से मसाइल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और इसमें एक ट्रैप है, इसमें शैतान ये ट्रैप करता है कि जब तक मेरे हालात नहीं अच्छे होंगे मेरी नमाज कैसे अच्छी होगी। अब ये बहुत बड़ा ट्रैप है, और ये तो एक बड़ा डेडली ट्रैप है, तो डेडली साइकिल है, क्योंकि ऑनेस्टली 100% तो हम कभी खुश होने नहीं वाले, तो इसका मतलब है कभी भी नमाज अच्छी नहीं होगी, इसका तो ये मतलब है, ठीक है। तो ये जो ट्रैप है कि पहले मैं खुश होऊंगा तो नमाज अच्छी पढ़ूंगा, या जब मेरा दिल करेगा तब मैं नमाज पढ़ूंगा, और ये शैतान की तरफ से है। इट शुड बी ऑपोजिट, कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे सेरेनिटी मिलेगी। कब मिलेगी? जब मैं माइंडफुल होकर नमाज पढ़ूंगा। अगर आदतन पढ़ूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होने वाला मेरा। तो आज का बस टेक अवे यही है कि नमाज के बारे में कोई सीरीज़ देखें इंशाल्लाह, और अपने ईमान को बूस्ट करें और कॉन्फिडेंस पकड़ें कि नमाज कितनी खूबसूरत चीज़ है। यानी अल्लाह ने फैक्ट्री लगाई हुई है, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया जो शख्स मस्जिद वॉक करके जाता है, और ख़वातीन को भी ये सवाब मिल सकता है इंशाल्लाह जब वो नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन मेल्स के लिए तो स्पेसिफिक है कि जो इंसान मस्जिद की तरफ जाता है नमाज के लिए, एक कदम पे गुनाह माफ़ होता है, एक कदम पे नेकी मिलती है, ठीक है ना। यानी कितने खुश होने वाली बात है कि एक कदम पे रिवॉर्ड मिल रहा है, एक कदम पे मेरा एक गुनाह माफ़ हो रहा है। तो अगर कोई बंदा ये समझ जाए तो वो तो दूर दूर मस्जिद जाए, और वॉक भी हो जाएगी, स्टेप्स भी पूरे हो जाएंगे, और वो जो है वो खुश होते हुए जाएगा, ठीक है ना। सहाबा इसीलिए देखें नमाज पढ़ने के लिए आते थे, खुश होके आ जाते थे, क्योंकि उनको ये हदीस पता थी, उनको पता था मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक पर्पसफुल चीज़ थी ना, मीनिंगफुल चीज़ थी। इसी तरह नबी ने फरमाया जो इंसान वुज़ू करता है, जब वो हाथ धोता है हाथ से किए हुए गुनाह झड़ जाते हैं, जब वो मुंह पे पानी मारता है तो आंखों से किए हुए, मुंह से किए हुए गुनाह वो झड़ जाते हैं, जब वो अपने एल्बोस तक हाथ धोता है वो गुनाह झड़ जाते हैं, जब वो पैर धोता है तो पैरों से किए हुए गुनाह झड़ जाते हैं। और उसके बाद जब वो पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो अल्लाह ताला उसको क्या रिवॉर्ड देंगे क़यामत वाले दिन?
8 दरवाज़ों से उसको चॉइस दी जाएगी, जिस दरवाजे से एंटर होना है एंटर हो जाओ। नबी ने फरमाया जो इंसान फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो उसका क्या रिवॉर्ड है? जन्नत, और उसके दरमियान सिर्फ क्या है? मौत। आयतल कुर्सी पढ़ के भी हमको खुश ना हो, उसके बाद भी कहे मैं डिप्रेस हूँ, उसके बाद भी कहे कि मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके बाद इसका मतलब कि उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। मीनिंगलेस एक चीज़ है, मीनिंगलेस इबादत है, ठीक है ना, और उसको ना वो फील कर रहा है। इसलिए आप कुछ पढ़ें इसके बारे में इंशाल्लाह और कॉन्फिडेंस फील करें। अभी तो मैंने बड़ी कम बातें नमाज के बारे में बताई हैं, ऐसी ऐसी प्यारी हदीस हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह, इतनी मैं अजीम चीज़ें कर रहा हूँ तो मुझे खुश रहना चाहिए लाइफ में। और क्या चाहिए, अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, तौफीक दे दी नमाज पढ़ने की, और क्या चाहिए, सुभान अल्लाह, बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे नमाज को आप एज अ क्या लें, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन लें। नमाज बहुत बड़ी एक्टिविटी है टू ब्रॉडन एंड बिल्ड योर पॉजिटिव इमोशंस, राइट। और वो कब होगा? जब आप नमाज को समझ के पढ़ेंगे। और दूसरी जो मैंने चीज़ बताई, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, इस पर भी गौर करें कि रिसर्च जब हमें बता रही है कि जो ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है उसकी वेगल टोन इम्प्रूव हो जाती है, तो सोचे जो बंदा नमाज अच्छे से पढ़ेगा, दुआ अच्छे से करेगा, अल्लाह ताला से दूसरों के लिए दुआ करेगा, चलते फिरते दुआ करेगा, तो आप सोचिए कि उसके ब्रेन पे, उसके इमोशंस पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा इंशाल्लाह, और कितना उसे फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो ये आज के इंशाल्लाह ताला जो है वो 2 टेक अवेज़ हैं। सो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात